Times of NG. This is Adya George from Class 10G. Today's news headlines are as follows. Beginning with international news, US carried out airstrikes against Iran-based militias in Iraq and Syria, says Pentagon. COVID outbreaks emerge across Australia in new phase of pandemic. Death toll in Florida building collapse rises to 9 with over 150 people still missing, reported Washington Post. Now let's focus on some national news. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced 8 new schemes to boost COVID-affected economy, which includes 23,000 crore health package and free visas to first 5 lakh visitors to India. Zydus Cadilla's COVID vaccine for children above 12 years of age could be out in India in August. AIIMS chief Dr. Randeep Guleria has said that this will pave way for the reopening of schools. Democratic system made it possible for a village boy like me to occupy the highest post in nation, revealed Indian President Sri Ram Nath Kovind. Centre extends the tenure of Attorney General K.K. Venugopal by another year. During his monthly Mann Ki Baat broadcast, Prime Minister Modi urged the people to shed vaccine hesitancy and get themselves inoculated soon. State news. Chhattisgarh's Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel has appealed to the farmers of the state to start Roka Chheka Abhiyan from the 1st of July. Highest 3.5 lakh vaccines administered in a single day of 27 June in Chhattisgarh. CBSE's newly launched subjects has also been introduced in our Engine School through a program held on the e-portal. Let's move on to sports news. World famous Wimbledon Tennis Championship has begun on 28th of June. Belgium defeats Portugal and Czech Republic defeated Netherlands in Euro Cup 2021 Football Championship. After Rafael Nadal, Serena Williams also opted out of Tokyo Olympics. Ace archer Deepika Kumari becomes world number 1 after winning gold at World Cup. English women's cricket team defeated Indian women by 8 wickets in the first one-day internationals held at Bristol. Weather updates. Chhattisgarh receives 229.7 mm average rainfall till date. Overall, India has received 37% excess rainfall. That's all for today from the Times of Engine. Thank you. मैं मुकेश श्रीवास्तव एमजीएम सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 6 में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको फुटबॉल से संबंधित रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी दूंगा। इस खेल में केवल 17 नियम हैं। यह नियम खेल से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नियम का निर्माण किया जाता है। फर्स्ट रूल है द फील्ड ऑफ प्ले। द फील्ड ऑफ प्ले यानी फुटबॉल का ग्राउंड, इसका टच लाइन मिनिमम 90 मीटर और मैक्सिमम 120 मीटर होता है। इसका गोल लाइन मिनिमम 45 मीटर और मैक्सिमम 90 मीटर होता है। इसका गोल पोस्ट 24 फीट चौड़ा होता है और उसका हाइट 8 फीट होता है। बॉल की आवश्यकता है तो ये फुटबॉल का दूसरा नियम है द बॉल।
इसका सर्कमस्टेंस 27 से 28 इंच का होता है। फीफा के नियमानुसार स्टैंडर्ड साइज में इसका निर्माण किया जाता है और उसके अप्रूवल वाले बॉल से इस खेल को आयोजन किया जाता है। ये हमारा तीसरा नियम है, द प्लेयर्स। इस खेल में अधिकतम 11 खिलाड़ी खेलते हैं और मिनिमम अधिकतम 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जिसमें गोलकीपर इंक्लूडेड होते हैं। उसी तरह इस पे कम से कम 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं, उस पे एक गोलकीपर इंक्लूडेड हुआ करता है। 7 से कम खिलाड़ी में इस खेल का आयोजन नहीं किया जा सकता। चौथा चीज होता है इक्विपमेंट्स, सामान, कैसे वेशभूषा में हमको खेलना है। यही हमारा चौथा नियम हो जाता है, इक्विपमेंट्स। इसमें इक्विपमेंट्स में जर्सी होना चाहिए, शॉर्ट्स होना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए, सिन पैड होना चाहिए जो सॉक्स से ढका हुआ होना चाहिए, और बूट होना चाहिए जिसमें स्टेटस लगा हुआ हो। इस खेल को संचालन करने के लिए एक रेफरी का, यह हमारा 5वां नियम है, रेफरी। ये फुटबॉल का 5वां नियम है, रेफरी। रेफरी इस खेल को पूरा अपने कंट्रोल में रखता है। उनको फुटबॉल के पूरे 17 रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए और उसको ओबे करने का तरीका के लिए उसको अपने खेल को अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरी जानकारी के साथ रेफरी होता है। 6वां नियम हो गया असिस्टेंट रेफरी। असिस्टेंट रेफरी टच लाइन के साइड में रनिंग करते हुए खिलाड़ियों अपने रेफरी से जो चीजें छूट जाती हैं उनको असेस करता है कि ये उससे फाउल हो रहा था, जिससे फुटबॉल को बहुत अच्छा संचालन किया जा सके। असिस्टेंट रेफरी बहुत से डायग्राम्स हैं कि इस डायग्राम के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा कि उसका क्या क्या एक्शन होता है। अगर वो रेस करता है हैंड तो खेल रोकना चाह रहा है, अगर वो फ्लैग को डिफेंस साइड शो करता है, इसका मतलब उनके द्वारा किया गया कोई गलतियां हैं। ये आपको चित्र के द्वारा समझ में आएगा कि कैसे कैसे एक्शन से वो अपने मेन रेफरी को कम्युनिकेट करता है अपने बातों को। आजकल ऑफिस एडिशनल ऑफिस में एक चीजें जो चालू हुआ है वो है VAR, वीडियो असिस्टेंट रेफरी। ये अभी फुटबॉल में चालू हुआ है। जो रेफरी से चूक जाता है उसको वीडियो के द्वारा देखकर उस रूल को अपनाया जा सकता है। ये हमारा 7वां रूल होता है, ड्यूरेशन ऑफ द मैच। ड्यूरेशन ऑफ द मैच में इस पे 45 मिनट का ईच हाफ होता है और साथ में 15 मिनट का इंटरवल टाइम, हाफ टाइम होता है। तो 45 मिनट ईच हाफ में 2 हाफ का खेल होता है जिसमें 90 मिनट तो खेलने पड़ते हैं और उसी बीच उसको 15 मिनट का हाफ टाइम मिलता है। अगर खेल ड्रा हो गया और नॉकआउट सिस्टम से हो रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है जो 15 मिनट का ईच हाफ होता है।
8वां लॉ हो जाता है स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग प्ले। स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग प्ले में दोनों टीम का टॉस होता है और जो टीम टॉस जीतती है उसको ग्राउंड लेने का मौका मिलता है और जो टीम लूज करती है उस टीम को गेम स्टार्ट करना पड़ता है। गेम स्टार्ट सेंटर स्पॉट के पास से होता है, जो सेंटर सर्कल होता है उसके स्पॉट से होता है। जब फर्स्ट टच होता है उसको किक ऑफ बोलते हैं। किक ऑफ के द्वारा खेल का शुरुआत होता है। नियम है द बॉल इन एंड आउट ऑफ प्ले। इस पे जब बॉल टच लाइन से बाहर जाता है तो उसको आउट माना जाता है। गोल लाइन से बाहर जाता है उसे आउट माना जाता है। बॉल इन किसको बोल सकते हैं? जब बॉल गोल पोस्ट से टकराकर, गोल पोस्ट से या बार से टकराकर फील्ड में वापस आ जाता है वो बॉल इन कहलाएगा और वो खेल कंटिन्यू रहेगा। उसी प्रकार कॉर्नर फ्लैग से टकराकर अगर बॉल ग्राउंड में वापस अंदर आ जा सकता है तो बॉल इन प्ले कहलाएगा और खेल कंटिन्यू रहेगा। ये बॉल इन है और बॉल गोल लाइन और टच लाइन से बाहर जाता है उसको बॉल आउट कहलाता है। अब बॉल इन किसको बोलते हैं, बॉल आउट किसको बोलते हैं, इसकी जानकारी मिल गई आपको। 10वां नियम है द मेथड ऑफ स्कोरिंग। द मेथड ऑफ स्कोरिंग में हमने देखा कि बॉल जब गोल पोस्ट के अंदर से या जमीन से या फिर एयर में गोल पोस्ट के अंदर जाता है, जो गोल लाइन को पूरा क्रॉस कर जाता है उसको हम गोल मानते हैं। इस चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गोल किसे माना जाएगा। गोल लाइन में है उसको गोल मानेंगे, गोल टच लाइन टच हो रहा है उसको गोल मारेंगे, कि पूरा बॉल क्रॉस हो जाएगा। इस चित्र के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगा। जो हमारा 10वां नियम है। 11वां नियम है ऑफ साइड। ऑफ साइड उसको करार देते हैं जब विरोधी पाले पे या अटैकर जब अटैक करने जा रहा है और अगर उधर दो डिफेंस करने वाला खिलाड़ी नहीं है और आप उनको क्रॉस कर जाते हो तो वो ऑफ साइड कहलाएगा। इस चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट होगा कि जब दोनों डिफेंस के पहले एक हमारा अटैकर पहले चले गया है और मैं उसको वो उस खिलाड़ी उसको पास दे रहा है, वो ऑफ साइड होगा। अगर बॉल को लेके जाता है तो ऑफ साइड ही होगा। इसी प्रकार जब थ्रो इन होता है तो ऑफ साइड नहीं होता। उसी प्रकार जब कॉर्नर किक होता है तो ऑफ साइड नहीं होता। बाकी समय ऑफ साइड के नियम का फॉलो किया जाता है। हमारा अगला 12वां नियम होता है फॉल्स और मिसकॉन्टैक्ट। फॉल और मिसकॉन्टैक्ट खिलाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए और खिलाड़ियों पे डायरेक्ट चार्ज ना हो जाए इसलिए इस नियम का निर्माण किया गया है। इसमें अगर खिलाड़ी बॉल को छोड़ के अपोनेंट खिलाड़ी पे कूद जाता है तो वो फॉल होगा। अगर वो चार्ज करता है, बॉल कहीं और है, वो चार्ज करता है और विरोधी खिलाड़ी के पैर में अगर लगता है तो वो फॉल होगा। अगर वो पीछे से खिलाड़ी को पकड़ने का प्रयास करता है तो वो फाउल हो सकता है, वो फाउल होगा। उसी प्रकार अगर हम किसी को धक्का मारते हैं तो वो फाउल होगा।
ये हमारा 13 नियम फ्री किक हो गया। फ्री किक में एडवांटेज ये है कि खिलाड़ी डायरेक्ट गोल में मारकर स्कोर कर सकता है, उसमें किसी को टच कराने की जरूरत नहीं है, किसी को पास देने की जरूरत नहीं है। अगर वो डायरेक्ट भी मारता है तो गोल हो सकता है, पास देना का जरूरत नहीं है, यानी कि डायरेक्ट भी मारने से गोल हो सकता है। आप पास देके मारो चाहे डायरेक्ट मारो, गोल आपको मिल जाएगा। वो फ्री किक है जो एडवांटेज है खिलाड़ी को। फाउल के बाद ये एक नियम बनाया गया है कि फाउल होने से कैसे स्टार्ट करें, वो है फ्री किक के द्वारा। इसको चित्र के द्वारा आपको समझ में आएगा कि कैसे फ्री किक के द्वारा खिलाड़ी डायरेक्ट स्कोर कर देते हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। अब फाउल के बाद आपको कैसे स्टार्ट करें, वो फ्री किक हो गया। उसी में एक और नियम आता है खेल को अच्छे संचालन करने के लिए, वो है पेनाल्टी किक। पेनाल्टी किक कब मिलता है? जब डिफेंस खिलाड़ी बॉल को पेनाल्टी एरिया के अंदर हाथ से खेलने का प्रयास करता है, हाथ से बॉल को रोकने का प्रयास करता है, तो अपोनेंट टीम को पेनाल्टी मिलता है। वो एक नया नियम, अगला नियम है जो 14वां नियम है पेनाल्टी किक। पेनाल्टी किक में सभी खिलाड़ी पेनाल्टी एरिया से बाहर रहते हैं, सिर्फ गोलकीपर और पेनाल्टी मारने वाला पेनाल्टी एरिया के अंदर रह सकता है। और मारने के बाद सब खेल तुरंत प्रारंभ हो जाता है, आप सब अंदर जा सकते हो। यह हमारा 14वां नियम है पेनाल्टी किक। अगला नियम है जब बॉल साइड लाइन से बाहर जाता है तो उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हमारा अगला और 15वां नियम है ये थ्रो इन। थ्रो इन द्वारा खेल को रीस्टार्ट करेंगे। थ्रो इन में बॉल को सिर के ऊपर से पूरा स्विंग करके बॉल को थ्रो किया जाता है। इस पे एक और चीजें हैं कि दोनों पैर जमीन में टिका हुआ होना चाहिए। ये थ्रो इन के द्वारा खेल को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारा अगला नियम हो जाएगा गोल किक। गोल किक कब होता है? जब बॉल गोल लाइन से बाहर जाता है अटैकर द्वारा। तो अटैकर द्वारा जब बॉल गोल लाइन से बाहर जाता है तो हम उसको फिर कैसे स्टार्ट करें? तो वो स्टार्ट करने का तरीका होता है गोल किक द्वारा, जो गोल एरिया में बॉल को रख के स्टार्ट किया जाता है। इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टार्ट होता है गोल किक। अब आपने देखा कि बॉल बाहर जा रहा है साइड लाइन से, तो थ्रो इन द्वारा स्टार्ट हो रहा है। गोल लाइन से बाहर जा रहा है डिफेंडर द्वारा, अटैकर द्वारा, तो गोल किक से स्टार्ट हो रहा है। पर अगर बॉल गोल लाइन से बाहर जा रहा है डिफेंड के द्वारा, तो फिर कैसे स्टार्ट होगा? तो वो हमारा 17वां और आखिरी नियम होता है कॉर्नर किक। जब बॉल डिफेंस के द्वारा गोल लाइन से बाहर जाता है तो उसको रिस्टार्ट करने के लिए अटैकर टीम को कॉर्नर किक मिलता है। इस चित्र के माध्यम से आपको जानकारी होगा कि कॉर्नर किक कैसे लिया जाता है, कॉर्नर किक कैसे लिया जाता है और उसका संचालन कैसे किया जाता है। ये फुटबॉल के 17 नियम मैंने आपको जानकारी दिया। शायद बहुत अच्छे से समझकर आप फुटबॉल खेल को खेलने में बहुत एंजॉय करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।